Dear students, today we shall complete chapter 7 of Snapshot book named Birth. This chapter is written by A.J. Cronin. In this excerpt from the Citadel, this chapter has been taken from the Citadel book, and the main character in this story is Andrew Manson. He is a doctor. Who is Andrew Manson? Let us see in detail. Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blenheim. एंड्रू मैनसन जो हैं उन्होंने अभी अपने डॉक्टर की पढ़ाई जो है वो पूरी की है और वो जो डॉक्टर एडवर्ड पेज हैं उनके असिस्टेंट हैं ब्लेनली के अंदर. As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. In this chapter, we shall see that when he was returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves. Christine is the girlfriend of Andrew Manson. So on the evening, he was on date with Christine, but he was disappointed with the meeting with his girlfriend Christine, and in the evening he met one of his friends Joe Morgan. वो अपने एक फ्रेंड से मिलते हैं जो मॉर्गन, जो उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं. जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स, जिनको लगभग 20 ईयर्स हो गए हैं शादी हुए, आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड. नाउ Joe Morgan's wife is pregnant and they are expecting their first child. So Mr. Joe Morgan has come to Andrew Manson to take his help in the delivery of his wife. Let us proceed towards the text. Though it was nearly midnight when Andrew reached Bringover, he found Joe Morgan waiting for him. When Andrew Manson reached his home, he found that Joe Morgan was waiting for him, walking up and down with the short steps between the closed surgery and the entrance to the house. Walking up and down, वो अपने घर के सामने जहाँ उसकी सर्जरी थी, क्लोज जो बंद थी, और घर था वहाँ पर वो घूम रहे थे. At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. At the sight of him, जब जो मॉर्गन ने डॉक्टर एंड्रू ऑनसन को देखा, तो द बर्ली ड्रिलर्स फेस, बर्ली मीन्स वेरी बिग, स्ट्रॉन्ग एंड हैवी, expressed relief. That person Joe, who was very heavy, he showed his relief after watching Dr. Andrew Monson. Hey doctor, I am glad to see you. I've been back and forward here this last hour. पिछले 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा था. The Mrs. wants you before time too. Mrs. wants you means his wife, Mrs. Suzanne Morgan, needs his services. She is suffering from labor pain. So Andrew, abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. Abruptly means suddenly, अचानक. रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स, वो अपने अफेयर्स के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब जो है वो डॉक्टर मॉर्गन को कहता है जस्ट टू वेट, आप वेट करो, लेट मी ब्रिंग माई बैग. ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग. देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेना ट्रेस. दिस इज द एड्रेस ऑफ जो मॉर्गन्स हाउस. द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विद मिस्ट्री, क्वाइट मिस्ट्री, usually so perceptive. Perceptive means ability to see or understand things quickly. Andrew now felt dull and listless. He was feeling listless. Listless means lazy, having no energy or enthusiasm. जिसमें अभी ताकत नहीं थी काम करने की. But he had no premonition that this night call would prove unusual, still less that it would influence his whole future in Blenheim.
Premonition means a feeling. Premonition means a feeling that something is going to happen, especially something unpleasant, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्वाभास. He had no premonition, मतलब ऐसा उसको पहले से आभास नहीं था कि that his night call would prove unusual. Unusual means that is not usual, strange. ये जो नाइट कॉल रात को जो बुलाने आया है वो बड़ा अजीब होगी ये रात. Still less that it would influence his whole future in blindly. तो ये इसके फ्यूचर को इफेक्ट करेगी. The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then John drew up short. I will not come in, he said, and his voice showed signs of strain. Strain means stress. He was under stress. But man, I know you will do well for us. But he says that, Doctor, I believe that you will do well for us. Inside, a narrow stair led up to a small bedroom. Now the doctor describes the condition of the rooms. Inside, a narrow stair led up to a small bedroom. एक small bedroom था, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp. The room was clean but poorly furnished, मतलब वहाँ फर्नीचर जो है वो पुराना था. and lit only by an oil lamp, एक oil lamp वो जग रहा था उसके अंदर. Here was Mrs. Morgan's mother, a tall, grey-haired woman of nearly 70. Now the doctor tells us how many family members were there. मिसिज मॉर्गन्स मदर, मिसिज मॉर्गन की मदर थी वहाँ पर, जिसकी उम्र कितनी थी, 70 ईयर्स. एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट. स्टाउट मीन्स फैट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाउट? फैट. एक मोटी. एल्डरली मिडवाइफ, मिडवाइफ क्या होती है? द लेडी हु हेल्प्स इन द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, जिसको दाई भी कहते हैं. वॉचिंग एंड्रूज एक्सप्रेशन as he moved about the room. Let me make you a cup of tea, Dr. Batch, said the former quickly after a few moments. The midwife said that, let me make a cup of tea for the doctor. Andrew smiled faintly. He saw that the old woman, wise in experience, realized there must be a period of waiting. She was afraid he would leave the case, saying he would return later. तो एंड्रू स्माइल फेंटली. एंड्रू जब वो स्माइल करता है ये कहते हुए कि जो ओल्ड लेडी है शी वॉज वाइज एंड शी माइट बी थिंकिंग दैट अभी जो है टाइम पड़ा है, देयर मस्ट बी पीरियड ऑफ वेटिंग, मतलब अभी डिलीवरी में टाइम लगेगा. तो शी वॉज अफ्रेड, उसे डर लग रहा था कि कहीं मैं केस छोड़कर बीच में भाग ना जाऊँ. He would leave the case, saying he would return later, कि मैं थोड़ी देर रुक कर आऊँगा. तो don't fret, mother, I will not run away. Don't fret का मतलब होता है worried. What is the meaning of fret? Worried. आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए मदर, माता जी, मैं जो हूँ भागूंगा नहीं. Down in the kitchen, he drank the tea which she gave him. Overwrought as he was, overwrought means very worried and upset. He knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. उसे पता था कि अगर घर चला गया तो 1 घंटा भी नहीं सो पाएगा. He knew too that the case here would demand all his attention. डॉक्टर एंड्रू बेंसन को ये भी पता है कि यहाँ पर इस केस में, डिलीवरी में उसकी अटेंशन की पूरी ज़रूरत है. A queer lethargy of spirit came upon him. Lethargy क्या होता है? The state of not having any energy or enthusiasm for doing things. And what is the meaning of queer? Queer का मतलब कहता है अजीब. एक अजीब उसमें मन में आई काम ना करने की इच्छा. But he decided to remain until everything was over. लेकिन उसने वो बात नहीं सुनी और जब तक सारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वहाँ उसने ठहरने की प्लान बनाया. An hour later he went upstairs again. वो दोबारा ऊपर जाता है चेक करने के लिए मिसेस सुजैन मॉर्गन को. Noted the progress made, came down once more,
सेट बाय द किचन फायर। अभी टाइम और लगना था तो नीचे आकर किचन फायर के पास बैठ जाता है। इट वॉज स्टिल except for the rustle of a cinder in the grate and the slow tick tock of the wall clock। साइंडर क्या होता है? पार्टली बर्न्ट कोल, तो जो कोयला है वो जल रहा था। एक्सेप्ट फॉर द स्टिल, बिल्कुल शांति थी, बस आवाज़ किसकी आ रही थी? कोयले की जलने की आवाज़ आ रही थी। और ग्रेट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेट? मेटल फ्रेम फॉर होल्डिंग कोल इन ए फायर प्लेस। अंगीठी की जो जाली होती है उसको ग्रेट बोलते हैं, जिसके ऊपर कोयला रखा हुआ था। और एक जो है घड़ी की टिक टॉक की आवाज़ आ रही थी, रात का समय था। नो, देयर वॉज अनदर साउंड, एक और साउंड आया। द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुट स्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। कदमों की आवाज़ मिस्टर मॉर्गन के, जो बाहर गली में चल रहा है। द ओल्ड वुमेन अपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस। जो ओल्ड लेडी है मॉर्गन, शी वॉज सिटिंग इन हर ब्लैक ड्रेस क्वाइट मोशनलेस, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव, आंखें बस जाग रही हैं। एंड वाइज प्रोबिंग नेवर लिविंग हिज फेस, बस डॉक्टर की तरफ वो देख रही है। प्रोबिंग का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबिंग? एग्जामिनिंग, कुछ खोज रही है, एग्जामिन कर रही, चेक कर रही है डॉक्टर के फेस को कि डॉक्टर क्या करेगा। हिज थॉट्स वर हैवी, और डॉक्टर की जो थॉट्स हैं, हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड। मडल्ड का मतलब कंफ्यूज, मिक्सड अप। द एपिसोड ही हैड विटनेस एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्बिडली? उदासी से, सैडली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्बिडली? सैडली। Here the doctor discuss about the some experiences of a unsuccessful marriage life। तो सबसे पहले वो जो कहता है कि जो कार्डिफ स्टेशन पे जो उसने सीन देखा, ही वॉज स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली। ऑब्सेस्ड मीन्स कम्प्लीटली फिल्ड इज माइंड विद सैडनेस। जो कुछ उसने देखा, क्या देखा? लेट अस सी। ही थॉट ऑफ ब्रैम्बल, ही थॉट ऑफ ब्रैम्बल foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly। फिर जो उसका दोस्त है ब्रैम्बल के बारे में सोचता है कि जो ब्रैम्बल है फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमन, वो एक ऐसी वुमन को लाइक करता है, हु डिसीव्ड हिम सॉर्डेडली। सॉर्डेडली का मतलब होता है इमोरली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्डेडली? इमोरली, डिसऑनेस्टी, बेईमानी से उसको धोखा दिया है। डिसीविंग का मतलब क्या होता है? धोखा देना। तो सोचता है कि जो मैरिज लाइफ है ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होती, तो ब्रैम्बल के बारे में सोचता है कि जो ब्रैम्बल है वो एक ऐसी लेडी को प्यार करता था जिसने उसे धोखा दिया। A woman who received sordidly of Edward Page, bound to the Jewish bloodline of Denny, living unhappily apart from his wife। शोइश ब्लॉडवन, शोइश का मतलब बैड टेम्पर्ड एंड ऑलवेज आर्ग्यूइंग, फिर झगड़ा करता है। बाउंड टू द शोइश ब्लॉडवन ऑफ डैनी, लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, जो अपने वाइफ से अलग रहता है। नेक्स्ट, हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेज वर डिसमल फेलियर्स। डॉक्टर सोचता है कि इस तरह की मैरिजेज जो हैं वो डिसमल फेलियर्स होती हैं। डिसमल का मतलब मिजरेबल। इट वॉज ए कंक्लूजन which in his present state made him wince। wince का मतलब होता है expression showing pain। what is the meaning of wince? expression showing pain। इस तरह की जो एक्सपीरियंस उसने देखे हैं उसे अपनी लाइफ में भी पीड़ा देते हैं। he wished to consider marriage as an idyllic state। वो चाहता है कि जो मैरिज जो है वो क्या हो? idyllic state हो। what is the meaning of idyllic state? Idyllic meaning is peaceful and beautiful। What is the meaning of idyllic state? Peaceful and beautiful। The marriage should be very peaceful and beautiful होनी चाहिए। Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him।
लेकिन यस ही कुड नॉट अदरवाइज कंसीडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम। क्रिस्टीन कौन है? उसकी गर्लफ्रेंड है। वो चाहता है कि मैरिज अगर हो तो पीसफुल हो, ब्यूटीफुल हो with his girlfriend Christine. Her eyes shining towards him admitted no other conclusion. He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. वो अपने इन ख्यालों में इतना खो जाता है कि लेट जाता है और आग की तरफ देख रहा है। He remained like this so long. ये सोचता सोचता शादी के बारे में, सक्सेसफुल मैरिजेस, अनसक्सेसफुल मैरिज के बारे में सोचता सोचता काफ़ी देर तक बैठा रहता है। एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टीन। उसके ख्यालों में उसकी जो गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन इतनी आज भर जाती है दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमन अपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स। कि एकदम से जब उसको ओल्ड वुमन जो है एड्रेस से उसे पुकारती है डॉक्टर, तब वो जाके उसे होश आता है। हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स। उसका जो मेडिटेशन है वो जो है वो लगातार फॉलो कर रही थी। शी वॉज प्रेइंग टू गॉड। Suzanne said not to give her the chloroform if it would harm the baby. She is awful set upon this child. Dr. Batch. So lady, her old eyes warmed at a sudden thought. She added in a low tone, we all are, I fancy." Okay, set upon. What is the meaning of set upon? तो वो उसे कहती है कि वो सुजैन को क्लोरोफॉर्म मत दे, जिससे जो है उसे और उसके बेबी को नुकसान पहुंच सकता है। तो शी इज़ आ फुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड। सेट अपॉन का मतलब होता है वांट टू हैव, बच्चे को पाने की इच्छा है। सेट अपॉन मीन्स वांट टू हैव दिस चाइल्ड। तो क्लोरोफॉर्म मत दे, इससे जो है बच्चे को नुकसान हो सकता है। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट। अब डॉक्टर उस ख्यालों से बाहर आता है। क्या कहता है? इट वॉन्ट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक। ये एनेस्थेटिक है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। एनेस्थेटिक क्या होता है? एनेस्थेटिक एक ऐसी मेडिसिन होती है, ए ड्रग दैट मेक्स ए पर्सन अनेबल टू फील एनीथिंग एल्स। सुन्न करने वाली दवाई होती है जिससे पेन ना हो। ही सेड काइंडली, "Here is the nurse." Voice was heard calling him from the top landing. Andrew glanced at the clock, which now showed 3:30. He rose and went up to the bedroom. He perceived that he might now begin his walk. 3:30 मतलब 3:30 बज चुके हैं सुबह के, और जो है वो उठता है और बेडरूम की तरफ जाता है। He perceived का मतलब क्या होता है? Noticed. What is the meaning of perceived? Noticed. He noticed that, ये देखता है, he might now begin his work. अब उसे अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। कौन सा काम? डिलीवरी का काम उसे स्टार्ट अब कर देना चाहिए। An hour elapsed. 1 घंटा बीत जाता है। elapsed का मतलब past. It was a long harsh struggle. Then as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind, the child was born lifeless. 1 घंटा मतलब 4:30 पौने 5 बजे के करीब जो है एक लॉन्ग स्ट्रगल करने के बाद फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डॉन। डॉन क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग। फ्रॉम द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, जो विंडो थी शीशे में से कुछ एक जो है डॉन की जो पहली किरण जो है वो अंदर आती हैं। एंड द चाइल्ड वॉज बोर्न लाइफलेस। लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ दैट वाज बोर्न लाइफलेस, वो बिल्कुल स्टिल था, उसमें कोई मोशन नहीं थी, लाइफ उसके अंदर नहीं थी। 20 साल बाद ये बच्चा पैदा हुआ, वो भी स्टिल। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म ए शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रू। जब बच्चे को देख रहा है तो एक शिवर ऑफ हॉरर, वो कांप जाता है कि ये क्या। After all that he had promised, his face
heated with his own exertions, chilled suddenly. Exertion मतलब efforts. इतनी देर से जो exertion कर रहा था, struggle कर रहा था, उसके जो है heated with his own expression, chilled suddenly. एकदम से वो chilled हो गए. He hesitated, torn between his desire to attempt a resuscitate the child. Resuscitate the child means make somebody start breathing again, ताकि बच्चा जो है दोबारा सांस लेने लग जाए. And his obligation towards the mother. Obligation means duty, कर्तव्य. Who was herself in a desperate state. वो जो मदर थी वो भी desperate state में. Desperate means hopeless, क्योंकि उसकी अभी डिलीवरी हुई है, वो भी बेड के ऊपर एक तरह से desperate state में पड़ी है. The now doctor was in dilemma. Dr. Andrew Manson was in a dilemma. Dilemma क्या होता है? A problematic situation in which one has to make a difficult choice between two things. Dilemma का मतलब होता है आदमी के सामने दो रास्ते होते हैं, वो कौन सा चूज करे. Choice, he has to make a choice. अब उसके सामने एक कन्फ्यूजन थी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, कि वो किसे बचाए. क्या वो चाइल्ड को बचाए, आइदर ही शुड सेव द चाइल्ड, या तो बच्चे को बचाए, या उसकी मदर सुजैन मॉर्गन को. तो डॉक्टर के सामने दो चॉइस थी. दिस वाज द डिलेमा इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर एंड्रयू मॉन्सन, दैट टू हुम ही शुड सेव, चाइल्ड और सुजैन मॉर्गन, किसको वो बचाए. ये उसके सामने एक बहुत बड़ी डिलेमा थी, कन्फ्यूज़न थी. The dilemma was so urgent, he didn't solve it consciously. Blindly, instinctively. Instinctively means without thinking. He gave the child to the nurse. बच्चा उसने नर्स को दे दिया. And turned his attention to Suzanne Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless and not yet of the other, upon her side. बच्चा जो है नर्स के हवाले करके उसने कोशिश की कि मैं जो हूँ पहले सबसे पहले सुजैन मॉर्गन को बचाऊंगा. His haste was desperate, a frantic race against her ebbing strength. Ebbing means decreasing. What is the meaning of ebbing? Decreasing, जो उसकी ताकत कम होती जा रही थी. It took him only an instant to smash a glass ampule and इंजेक्ट द मेडिसिन. एम्प्यूल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्यूल? ग्लास एम्प्यूल. ये डॉक्टर के पास इंजेक्शन वाला स्मॉल कंटेनर होता है. एम्प्यूल मीन्स ए स्मॉल कंटेनर, छोटी शीशी. उसको उसने तोड़ा और उसमें दवाई डाली. देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज. हाइपोडर्मिक सिरिंज क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट विद ए लॉन्ग थिन नीडल दैट इज़ यूज टू गिव समबडी इंजेक्शन अंडर देयर स्किन. इंजेक्शन लगाने की सुई. And worked unsparingly to restore the flaccid woman. To restore the flaccid woman. Flaccid woman means soft and weak. What is the meaning of flaccid? Soft and weak. Soft and weak. क्योंकि डिलीवरी के बाद जो है वो लेडीज जो है वो वीक हो जाती हैं. After a few minutes of feverish effort. Feverish effort का मतलब क्विक, जो लगातार उसने एफर्ट्स किए क्विकली, क्योंकि बच्चे को भी बचाना है. हर हार्ट स्ट्रेंथर्ड, उसमें जो हार्ट जो उसमें ताकत आई. ही सा दैट ही माइट सेफली लीव हर, देखा कि अब ये ठीक हो रही है, मैं इसको छोड़ सकता हूँ. एंड ही स्वंग राउंड इन हिज शर्ट स्लीव्स. ही स्वंग राउंड, जो अपनी स्लीव्स जो थी वो ऊपर की. हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प ब्रो, उसकी जो आईब्रोज हैं उस पर पसीना आ गया था. अब वो क्या कहता है? वेयर इज़ द चाइल्ड, बच्चा कहाँ है? द मिड वाइफ मेड ए फ्राइटन जेस्चर, इशारा करते हुए कहा. शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड. मिड वाइफ जो दाई थी उसने कहा कि मैंने बच्चा बेड के नीचे रख दिया है, क्योंकि वो सोच रही थी बच्चा मर चुका है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसने बच्चा जो है बेड के नीचे रख दिया. तो इन ए फ्लैश एंड्रू नेल्ट डाउन, बिजली की तरह वो नीचे झुका.
फिशिंग अमंगस्ट द sodden newspaper below the bed. Sodden means extremely weak. Sodden means extremely wet. गिल्ला जो न्यूज़पेपर हुआ पड़ा था उसके अंदर बच्चा था, उसको बाहर निकाला. ही पुल्ड आउट द चाइल्ड. ए बॉय परफेक्टली फॉर्म, देखा कि लड़का है. परफेक्टली फॉर्म्ड. द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट. लिम्प मीन्स लैकिंग स्ट्रेंथ और एनर्जी. यहाँ पर जो है द लिम्प बिल्कुल जो उसकी बॉडी वीक थी. एंड बॉडी वॉज वाइट, पिंक कलर की बॉडी नहीं थी, इट वॉज अ वाइट. एंड सॉफ्ट एज अ टैलो, और उसकी बॉडी ऐसी थी जैसे कि टैलो होती है. टैलो क्या होता है? द हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज टू मेक सोप कैंडल्स. पिंगली पशुओं कठोर चर्बी की तरह जो उसकी बॉडी हुई पड़ी थी, बिल्कुल मेल्ट. द कोड हेस्टली स्लैश्ड ले लाइक ए ब्रोकन स्टेम. द कोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड? जो उसकी नाल होती है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पेट के साथ एक नलुआ जुड़ा होता है जो मदर से कनेक्टेड होता है. हेस्टली स्लैश्ड, इसको क्विकली काटा गया था. ले लाइक ए ब्रोकन स्टेम, वो एक ब्रोकन टूटे हुए तने की भांति वो जो कोड थी वो पड़ी हुई थी. द स्किन वॉज ऑफ ए लवली टेक्सचर स्मूथ एंड टेंडर. जो उसकी जो स्किन थी वो जो है बिल्कुल लवली थी, सुंदर थी. द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक, लेकिन उसकी जो गर्दन थी, उसका जो सिर है, द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक, पतली गर्दन पे उसका सिर लुढ़का पड़ा था. द लिम्स सीम्ड बोनलेस, उसके जो लिम्स थे ऐसे लगता था जैसे उसके अंदर हड्डी है ही नहीं. तो बिल्कुल वाइटनेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जैसे उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है. देयर वॉज नो ब्लड इन द चाइल्ड. Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. What is the meaning of haggard frown? Haggard frown का meaning क्या होता है? Looking very tired, पूरा थक चुका था. The whiteness meant only one thing. जो उसकी बॉडी वाइट थी उसका मतलब एक ही था, एस्फिक्सिया पैलिडा. एस्फिक्सिया पैलिडा का मतलब क्या होता है? सफोकेशन और अनकॉन्शियस कंडीशन caused by lack of oxygen and excess of carbon dioxide in the blood. This is the meaning of asphyxia pallida, कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो चुकी है, इसकी वजह से सफोकेशन है. दैट्स वाई बॉडी इज़ वाइट. Unnaturally, and his mind, unnaturally tense, raced back to a case he once had seen in Samaritan. तो जब ये कंडीशन देखता है तो उसे एक सीन याद आता है कि पहले पास्ट में कोई एक केस हुआ था समैरिटन के अंदर, वो भी बिल्कुल ऐसा ही केस था. टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, वो याद करता है कि इस बच्चे को कैसा ट्रीटमेंट दिया गया था. इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट. तो जैसे ही वो उसे वो सीन याद आता है तो अब वो जो है वो एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा. गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर ही थ्रू आउट टू द नर्स एंड बेसिन्स टू, क्विक क्विक. तो वो नर्स को ऑर्डर देता है कि मुझे बेसिन्स चाहिए, कंटेनर चाहिए, और उसमें एक में क्या हो, हॉट वाटर, और एक में क्या होना चाहिए, कोल्ड वाटर. एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी, और जल्दी से लेकर आओ. बट डॉक्टर, शी faltered her eyes on the pallid body of the child. लेकिन उसको डॉक्टर, नर्स कहती है कि डॉक्टर, मतलब शी वॉज नॉट कॉन्शियस दैट द चाइल्ड कैन बी रिसरेक्टेड, उस बच्चे को दोबारा से ठीक किया जा सकता है. तो कहते हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलिड बॉडी? पैलिड बॉडी का मतलब पीली, जो बॉडी पेल पड़ चुकी थी. वो कह रही थी कि इसमें गर्म पानी ठंडे पानी का क्या करोगे. डॉक्टर चिल्लाता है, क्विक, जल्दी जाओ. ही शाउटेड, चिल्लाता है वो. स्नैचिंग ए ब्लैंकेट ही लेट द चाइल्ड अपॉन इट. एक कंबल छीनता है और उसके बच्चे को ऊपर लुटा देता है. एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन.
जो रेस्पिरेशन का स्पेशल मेथड है वो स्टार्ट करता है। द बेसिन्स अराइव्ड, वो बर्तन आ जाते हैं। द ईवर, द बिग आयरन केटल। ईवर का मतलब होता है ए लार्ज जग, एक बहुत बड़ा जग। बिग आयरन केटल। फ्रेंटिकली he splashed cold water into one basin, into the other he mixed water as hot as his hand could bear। एक में ठंडा पानी डालता है, फ्रेंटिकली मतलब बड़ी क्विकली, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रेंटिकली? क्विकली, स्पीड से। एक में ठंडा पानी और एक में इतना गर्म पानी डालता है जिससे उसका हाथ सहन कर सके। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, देन लाइक सम क्रेजी जगलर, एक पागल जगलर की तरह जो है, he hurried the child between the two, now plunging into the icy, now into the steaming bath। तो बच्चे को कभी ठंडे पानी में डालता है और कभी गर्म पानी में डालता है, फिर ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में। कितनी देर किया उसने? 15 मिनट्स पास्ट, 15 मिनट बीत गए। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रूज आइज, अब पसीना आईब्रो से आंखों में जा रहा था। ब्लाइंडिंग हिम, वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन ड्रिपिंग, उसकी जो स्लीव्स है, बाजू की शर्ट की स्लीव जो है वो भीग गई थी। हिज ब्रीथ केम पैंटिंगली, अब उसका सांस जो है वो हाफते हुए बाहर निकल रहा था। बट नो ब्रीथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड। लैक्स बॉडी क्या होता है? नॉट स्टिक, बिल्कुल ढीली। जो लैक्स बॉडी का मतलब होता है बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी। जो बच्चे की बॉडी ढीली पड़ी हुई थी, स्टिकनेस नहीं थी उसमें से सांस नहीं आ रहा था, और डॉक्टर के सांस जो है वो बड़े फूल फूल के निकल रहे थे। ए डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, उसके हाथ हार लग रही थी। ए रेजिंग होपलेसनेस, उसके हाथों में होपलेसनेस लग रही थी। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन द स्टार्क कंस्टर्नेशन, उसे लगा कि जो मिडवाइफ है वो उसको घूर घूर के देख रही है। Pressed back against the wall there she had all the time remained, वो लेडी वहीं रही है दीवार के साथ। Her hand pressed to her throat, उसके हाथे जो है वो गले के पास थे। Uttering no sound, कुछ नहीं बोल रही थी। Her eyes burning upon him, उसकी आंखें जो है उसको गुस्से से देख रही थी। Was the old woman, और साथ में कौन थी? वो old woman बैठी थी। He remembered her longing for a grandchild, डॉक्टर को याद आता है कि शी वॉज लॉन्जिंग फॉर ए ग्रैंड चाइल्ड। लॉन्जिंग का मतलब क्या होता है? इच्छा, कि उस ग्रैंड लेडी की इच्छा क्या है? ग्रैंड चाइल्ड। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्जिंग फॉर दिस चाइल्ड, यही इच्छा उसकी बेटी की भी है, मिसेस सुजैन मॉर्गन की भी है। ऑल डैश्ड अवे नाउ फर्टाइल बियॉन्ड रेमेडी, लेकिन सारी की सारी ये इच्छाएँ जो हैं डैश हो जाएंगी, सारे के सारे सपने बिखर जाएंगे अगर ये बच्चा ठीक नहीं हुआ। द फ्लोर वॉज नाउ ए ड्रैगल्ड मैस, द फ्लोर वॉज नाउ ए ड्रैगल्ड मैस, एक मैस बन चुका था, सारा सामान इधर उधर बिक चुका था, डर्टी हो चुका था। मैस का मतलब डर्टी। फ्लोर वॉज नाउ डर्टी, डर्टी और वेट। स्टम्बलिंग ओवर ए स्टॉपिंग टॉवल एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, और हफड़ा दफड़ी में जो है वो स्टम्बल हो गया, लड़खड़ा गया और बच्चा गिर भी जाना था। एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स, वो बच्चा गिल्ला हो चुका है, स्लिप हो रहा है। लाइक ए स्ट्रेंज वाइट फिश, एक अजीब नई मछली की तरह जो बच्चा बिल्कुल हाथों से फिसल रहा है। तो फॉर मर्सीज टेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, विम्पर्ड का मतलब क्या होता है? मेड ए सीरीज ऑफ लो फीबल साउंड, धीरे धीरे वो बोली मिडवाइफ। इट इज़ स्टिल बॉर्न, ये पैदा ही स्टिल बॉर्न हुआ है। स्टिल बॉर्न का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिल बॉर्न? बॉर्न डेड, ये मरा हुआ पैदा हुआ है। डॉक्टर आप इतना इस पर क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? क्यों इसको कभी गर्म पानी में ठंडे पानी में लगा रहे? एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, हीड का मतलब क्या होता है? अटेंशन। एंड्रू ने उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। बिटन डिस्पेयरिंग हैविंग लेबर्ड इन वेन और हाफ एन आवर, आधा घंटा उसने मेहनत की, थक गया पूरा।
ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, एक लास्ट एफर्ट और कर रहा है। रबिंग द चाइल्ड विद द रफ टॉवल, एक खुरदरे टॉवल के साथ जो है वो बच्चे को रब कर रहा है। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स, और बच्चे की जो छाती है उसको क्रश कर रहा है धीरे धीरे अपने हाथों से। ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इन टू द लिम्प बॉडी, ताकि उस बॉडी के अंदर जो है वो सांस आ जाए। एंड देन बाय ए मिरेकल, और इन द एंड एक मिरेकल हुआ। मिरेकल का मतलब चमत्कार हुआ। द पिग्मी चेस्ट, पिग्मी का मतलब होता है वेरी स्मॉल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिग्मी? वेरी स्मॉल, वो छोटी सी चेस्ट के अंदर। विच हिज हैंड्स एनक्लोज्ड गेव ए शॉर्ट कन्वल्सिव हीव। कन्वल्सिव मीन्स विद सडन इरेगुलर मूवमेंट, इरेगुलर मूवमेंट के साथ हीव, सांस की आवाज़ आई, उठान, उबारा। हीव का मतलब उठी उसकी छाती। अनदर, उसके बाद फिर से उसने सांस लिया। एंड अनदर, फिर उसके बाद सांस, फिर उसके बाद सांस। एंड्रयू टर्न्ड गिडी, गिडी का मतलब चक्कर आ जाना, उसको जो है वो इतना थक गया था। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग beneath his fingers, after all that unavailing striving was so exquisite it almost made him faint. Unavailing मतलब useless. What is the meaning of unavailing? Useless. और striving का मतलब efforts. What is the meaning of striving? Effort. Useless efforts. The sense of life springing beneath his fingers after all that unavailing striving was so exquisite it almost made him faint. इतनी उसने मेहनत जो की वो लगभग बेहोश होने वाला था। He redoubled his efforts feverishly, उसने फिर वही efforts दोबारा से किए quickly, feverishly का मतलब quickly. The child was gasping now, अब बच्चा जो है वो सांस लेने लग गया। Deeper and deeper a bubble of mucus came from tiny nostril, उसके नाक में से जो नोस्ट्रिल थी उसमें से एक म्यूकस निकला। म्यूकस क्या होता है? थिक लिक्विड फॉर्म्ड इन नोज, जो हमारे नाक में एक लिक्विड जम जाता है, वो म्यूकस उसके नाक से निकला। तो एक जॉयफुल इरिडिसेंट बबल, इरिडिसेंट मतलब शोइंग मैनी कलर्स, कई रंग दिखाते हुए जो बबल जो है वो इसके निकले। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब उसके लिम्स जो हैं बोनलेस नहीं लग रहे थे, मतलब उसकी हड्डियां जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गई। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, अब उसकी गर्दन जो पहले यूं लटक रही थी जैसे हड्डी से नहीं जुड़ा हुआ है वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया। द ब्लैंच्ड स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक। ब्लैंच्ड स्किन का मतलब जो वाइट कलर की उसकी जो स्किन थी, पीले कलर की जो स्किन थी, जो बॉडी पहले पीली हुई पड़ी थी, ब्लैंच मतलब पीली, वो जो है अब वो कैसे होने लग गई? पिंक पड़ने लग गई। एंड देन एक्सक्विजिटली केम द चाइल्ड्स क्राई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्विजिटली? एक्सक्विजिटली में स्ट्रांगली फेल्ट, जो महसूस हुई बच्चे की चीख जो है वो, बच्चा रोने की आवाज़ आई। और इन द एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। Dear Father in heaven, the nurse sobbed hysterically. It's come alive. Dear Father in heaven, जो नर्स जो है वो वर्ड को याद करती है, और hysterically का मतलब होता है in an uncontrolled way, उससे कंट्रोल नहीं हुआ गया। It is come alive, बच्चा जिंदा हो गया है। Andrew handed her the child, Andrew ने बच्चा नर्स को दिया। He felt weak and dazed, वो खुद इतना कमज़ोर पड़ गया था, उसे चक्कर आ रहे थे। अबाउट हिम द रूम ले इन शडरिंग लिटर, अब रूम के बारे में देखा जाए तो पूरा जो रूम है वो गंदगी से भर चुका था। ब्लैंकेट्स, टावल्स, बेसिन्स, soiled instruments, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum, वो सारा कुछ सामान जो है बिखरा पड़ा था। The ever knocked over, the kettle on its side in a puddle of water, upon the huddled bed means holding close together, the mother still dreamed her way
क्वाइटली थ्रू द अनेस्थेटिक, वो नशे में वो भी पड़ी हुई है। द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, ओल्ड वुमन अभी भी दीवार के साथ खड़ी प्रेयर कर रही है। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, शी वॉज प्रेइंग, वो प्रे कर रही थी दोनों मदर और चाइल्ड के लिए। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, पुल्ड ऑन हिज जैकेट, उसने अपनी स्लीव नीचे की, अपनी जैकेट डाली। आई विल फैच माई बैग लेटर नर्स, इतना थक चुका था, उसने कहा कि मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा। ही वेंट डाउन स्टेयर्स थ्रू द किचन इन टू द स्कलरी, वो नीचे आता है थ्रू द किचन इन टू द स्कलरी। वट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कलरी? स्कलरी क्या होता है? ए रूम फॉर वॉशिंग डिशेज एंड सिमिलर, बर्तन धोने का कमरा। हिज लिप्स वर ड्राई, एट द स्कलरी ही टुक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कॉट। द डॉक्टर ने बच्चे की जान बचाई। अगर वो नर्स की तरह सोचता तो बच्चे को ना बचा पाता, लेकिन उसके दिल में था कि मुझे बच्चे को बचाना है। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद द टेंस एक्सपेक्टेंट फेस, बाहर जो है जो खड़ा हुआ था, हु इज़ जो? मिस्टर जो मॉर्गन, मिसिस सुजैन मॉर्गन का हस्बैंड। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट, कहते सब ठीक ठाक है, बोथ आर राइट। इट वॉज क्वाइट लाइट, अब दिन की रोशनी हो चुकी थी। नियरली 5 o'clock, 5 बज चुके थे लगभग। ए फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स, कुछ लोग माइनर्स जो थे वर्किंग इन माइन, माइनर्स कौन होते हैं? पीपल वर्किंग इन माइंस, जो कोयले की खानों में काम करते हैं। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, as Andrew walked with them, spent and slow, his footfalls echoing with the others under the morning sky. एंड्रू भी उनके साथ चल रहा है, थका हुआ है, उस his footfalls echoing with the others, उसके पाँव भी जो है आवाज़ कर रहे हैं। अंडर द मॉर्निंग स्काई, ही kept thinking blindly, वो सोच रहा है। ऑब्वियस टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लेनली, सारे जो वो सोच रहा है कि आप थिंकिंग ब्लाइंडली। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस का मतलब होता है नॉट अवेयर ऑफ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्लिवियस? नॉट अवेयर ऑफ, जितने भी काम जो ब्लेनली में काम किया उसके बारे में भूल गया, लेकिन इसको बस इतना याद है क्या? आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, मैंने कुछ अच्छा किया है, आज मैंने जो है बहुत अच्छा काम किया है। समथिंग रियल एट लास्ट, रियल मतलब ही सेव्ड द लाइफ ऑफ ए डेड चाइल्ड, ही बिकेम द cause of the successful birth of a child, successful birth of a child who was born after 20 years expectations, 20 साल की उम्मीदों के बाद बच्चा पैदा हुआ है। एंड्रयू, उसके पीछे क्रेडिट किसको जाता है? डॉक्टर एंड्रयू मेंसन के, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन, जिसने नर्स की तरह नहीं सोचा, जिस नर्स ने बेड के नीचे बच्चा रख दिया था, लेकिन डॉक्टर एंड्रयू मेंसन कोशिश की। तो मुझे वो याद आ रही है बात, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, मतलब जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो डॉक्टर एंड्रयू मेंसन की चाह थी कि बच्चे को बचाना है, एंड ही बिकेम सक्सेसफुल in saving and in giving the birth to a child. So this is all about the chapter the birth. I hope you have understood this chapter. If you understood this chapter, please like this video, subscribe my channel, and if you face any problem, drop me in the comment box. See you in the next video. Thank you. Have a nice day.